ذکر سہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے آئے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد کرتے ہیں ہم آپ سے آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ آج کا سوال میں تو ہم آ گئے ہیں، اور آج کا سوال کیا ہے، یہ میں آپ کی طرف بڑھانے لگا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کس جانور کی آواز کو قرآن کریم میں برا کہا گیا ہے؟ کس جانور کی آواز کو قرآن کریم میں برا کہا گیا ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ ماشاء اللہ فرید بھائی آپ کو اللہ پاک بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. جی تو کٹس مدی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. کیا اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے حکم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ چاہے تو زیادہ کو تھوڑا کر دے، تھوڑے کو زیادہ کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے. وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ہمارے اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم کو ایسا کوئی حکم نہیں فرماتا جو ہماری طاقت سے باہر ہو. جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے بارے میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تعلم اللغۃ العربیہ، یعنی آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد رضا بھائی آج آپ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم ایک جملہ اور 2 الفاظ سیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہمارا جملہ ہے وہ بہت خوبصورت جملہ ہے اور وہ ایسا جملہ ہے جو کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کی. جی یہی جملہ ہے جو آج ہم عربی میں سیکھیں گے، یعنی قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے. اسے آئیں عربی میں پڑھتے ہیں. القرآن 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 کتاب اللہ کتاب اللہ القرآن القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. القرآن القرآن کتاب اللہ کتاب اللہ القرآن القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ. اب اس جملے کو مکمل پڑھیں گے. القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ. یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. القرآن، دوبارہ ریوائز کر لیں. القرآن القرآن کتاب اللہ کتاب اللہ القرآن القرآن کتاب اللہ کتاب اللہ القرآن القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ. جی ابھی کسی کو یاد ہو گیا؟ چلیے آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن کتاب اللہ. ماشاء اللہ بالکل. القرآن کتاب اللہ کے میننگ کیا ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ ابھی سب سے پہلے ہم نے میننگ بھی پڑھے ہے نا. چلیے آپ بتائیے. مائک لے لیں، مائک دیں ان کو. اللہ کی کتاب. کیا اللہ کی کتاب؟
قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور آپ نے بائیں ہاتھ سے دیا تو جو بھی کام کریں دائیں ہاتھ سے لینا چاہیے, دائیں ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. چلیے دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. القرآن القرآن کتاب اللہ, کتاب اللہ, القرآن القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ. جی, اس کے بعد ہمارے 2 ورڈز ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے چمچ, جسے ہم انگلش میں اسپون کہتے ہیں. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں. چمچ کو عربی میں کہتے ہیں ملعقہ. ملعقہ, 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 ملعقہ. ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملعقہ. ملعقہ کے میننگ کیا ہیں؟ چمچ, چمچ. چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملعقہ. جی, اس کے بعد والا ہمارا لفظ ہے باورچی خانہ. اچھا, ویسے تو ہم اردو میں اسے کچن ہی بولتے ہیں, اردو لینگویج ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کچن ہی بولتے ہیں, لیکن یہ کچن جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے, اردو میں اسے باورچی خانہ بولتے ہیں. اور باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں. عربی میں اسے بولتے ہیں مطبخ. مطبخ, باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ. اور اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کچن, کچن. کچن کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ, جی, دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. کچن کو عربی میں بولتے ہیں مطبخ. مطبخ, کچن کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ. اور اس کے اردو میں میننگ کیا ہے؟ باورچی خانہ, باورچی خانہ. باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ, باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ, باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ. جی, اس سے پہلے والا ہمارا لفظ کون سا ہم نے یاد کیا تھا؟ چمچ, چمچ. چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ. ملعقہ, دوبارہ ریوائز کر لیں. چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ. اور باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ, مطبخ. کیا بولتے ہیں؟ مطبخ. جی, کسی کو یاد ہو گیا؟ دونوں ورڈز یاد ہو گئے؟ چمچ کو عربی میں بولتے ہیں ملعقہ جی, اور باورچی خانے کو عربی میں بولتے ہیں مطبخ. ماشاء اللہ, آپ نے دونوں ورڈ سنا دیے, ماشاء اللہ. اور کس کس کو یاد ہے؟ اور کس کس کو یاد ہے؟ چلے دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں, اچھی طرح سے یاد کر لیں. کچن کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کچن کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ, چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ, باورچی خانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مطبخ. جی, ابھی کسی کو یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا ہوگا اب تو. اچھا, ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیے. عربی میں کہتے ہیں مطبخ اور چمچ کو عربی میں کہتے ہیں ملعقہ. ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ, چمچ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ملعقہ. جی پیارے بچوں, آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ایک بات ہے کہ ابھی آپ نے بھی بولا تھا کہ سیدھا ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھا ہاتھ سے دینا چاہیے, جی تو انہوں نے ابھی الٹا ہاتھ سے لیا تھا. دیکھیں, ابھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے. کوئی بھی کام شروع کریں تو سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے. جی آئندہ یاد رہے گا نا سب کو. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح آپ ہمارا جو روزانہ کا ہم لیسن پڑھتے ہیں وہ آپس میں آپ گھر میں بھی ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں. آئندہ نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر احمد رضا بھائی, آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف. میرا نام حفصہ طاریہ بنت مہدہ طاری ہے. آج میری پہلی کال ہے. آج میں آپ کا آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو برا کہا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. تو میرا نام عبد الرحمان ہے, میں مرکز العلیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری آج چوتھی کال ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. گدھے کی آواز کو قرآن مجید میں برا کہا گیا. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی بالکل, کڈس مدنی چینل, آپ نے سوال کا جواب دیا. پروگرام کے اندر تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام نور العین ہے. میں کراچی
कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। रमजान भाई, आज के सवाल का जवाब है, कुरान मजीद में डोंकी की आवाज को बुरा कहा गया है। हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया और आपने सवाल का जवाब दिया। प्रोग्राम के एंड तक कहीं नहीं जाएंगी तो आपको जरूर जवाब मालूंगा। जी तो मत दीजिएगा नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए देखते हैं फैज़ान इब्राहिम कंप्यूटर। फैजान इब्राहिम कंप्यूटर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा तारी बिन मोहम्मद यूसुफ रज़ा तारी है। उम्र? मेरी उम्र 8 साल है। माशाअल्लाह। इब्राहिम कंप्यूटर का आज आपके लिए लक़ब है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। अच्छा फैजान इब्राहिम कंप्यूटर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह के माना भी बता दीजिए। खलीलुल्लाह का मायना है अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत कुरान करीम के कौन से पारे में है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नाम की सूरत कुरान पाक के 13वें पारे में है, जिसका नाम है सूरह इब्राहिम। सुभान अल्लाह। अच्छा इब्राहिम कंप्यूटर, वो कौन से काम है जिनकी इब्तिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, चंद के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम मुलाकात के वक्त लोगों से गले मिले। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सफेद बालों में तेल और नीले पत्तों का खिजाब लगाया। अच्छा, वो तेल और नील नहीं है, सबसे पहले मेहंदी और नील के पत्तों का इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खिजाब लगाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किसी एक बेटे का नाम बताइए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ फजाइल भी सुनाइए। आप अलैहिस्सलाम ही की याद में कुर्बानी की जाती है। आप अलैहिस्सलाम हज के अरकान आप अलैहिस्सलाम ही की याद है। जिस पत्थर पे खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया, उस मकाम पर अल्लाह पाक ने नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर भी फरमाई है। माशाअल्लाह। फैजान इब्राहिम कंप्यूटर, ये तो बताइए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल शरीफ के वक्त उम्र मुबारक ने एज कितनी थी? 175 इयर्स। माशाअल्लाह, 175 साल यानी 175 इयर्स की आपकी मुबारक उम्र थी, एज थी। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई मोजिज़ा भी सुना दीजिए। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 2 भूखे शेर छोड़ दी गए। अल्लाह पाक की शान देखिए कि वो भूखे होने के बावजूद भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगे और आपके आगे झुक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्माने गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती,
हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, फैजान इब्राहिम कंप्यूटर जिंदाबाद। अल्लाह आपको आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, तो हमने भी देखा और आपने भी देखा फैजान इब्राहिम कंप्यूटर यहाँ पे नारे लगाते हैं, हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती चार याराने नबी जन्नती जन्नती सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती हजरत अली भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती 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 जन्नती। जी, तो किड्स मदी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में मैंने आपसे आज का सवाल जो किया है वो सवाल ये है कि किस जानवर की आवाज़ को कुरान करीम में बुरा कहा गया है? किस जानवर की आवाज़ को कुरान करीम में बुरा कहा गया है? जी, तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं हमारे हारून भाई की तरफ जो हमें आए वाक़े सुने में एक बहुत ही प्यारा वाक़े सुनेंगे। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक सफ़र पर था तो मुझे बहुत शदीद प्यास लगने लगी। मैंने पानी की तलाश में अपने रास्ते से हटकर वादी की तरफ चलने लगा। अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी, मुझे लगा किसी जानवर की आवाज़ है, वो मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं भागने ही वाला था कि पहाड़ियों से आवाज़ आई, यानी उनसे किसी ने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई मामला नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह पाक के एक वली ने हसरत से एक लंबी सांस ली तो उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। सुभान अल्लाह। जब मैं अपने रास्ते की तरफ वापस मुड़ा तो एक शख्स को इबादत करते हुए देखा। मैंने इसे सलाम किया और फिर अपनी पानी की प्यास के बारे में बताया। उसने कहा, ए मालिक, इतनी बड़ी सल्तनत में आपको एक कतरा पानी का भी नहीं मिला। फिर वो चट्टान की तरफ गया और पाँव की ठोकर मार कर कहा, इस जात की कुदरत से हमें पानी से सैराब कर, यानी पिला, जो पुरानी हड्डियों को भी जिंदा करने पर कादिर है। सुभान अल्लाह। अचानक चट्टान से पानी ऐसे बहने लगा जैसे चश्मे से बहता है। मैंने जी भरकर पानी पिया और उस शख्स से अर्ज की कि तुम मुझे कोई नसीहत करो जो मेरी जिंदगी में मुझे काम आए। फिर उस शख्स ने नसीहत करते हुए कहा कि तुम तन्हाई में इबादत करा करो तो अल्लाह पाक तुम्हें जंगलात में भी पानी से सैराब कर देगा, यानी पानी पिला देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। जी, जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, आप हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको आलिम बाअमल बनाए। जी, तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चे, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल की तरफ। मेरा नाम मशहूद अजहर है, मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। गद्दा। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियान है, मुझे बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब है गधे की आवाज़। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सवाल का जवाब है गधे की आवाज़ को कुरान पाक में बुरा कहा गया है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लग रहा है। आज के सवाल का जवाब ये है खदा। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम उमर है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा। अल कुरान किताबुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अफजा है, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। गधा। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
मैं फातिमा हाल लाहौर से बोल रही हूँ। मैं आज आपको 500 नमाजों के नाम बताऊंगी। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद असमैन है और मेरे आप कॉल आपके शो में दूसरी है। आज के सवाल का जवाब है गधा। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी ये थी कुछ कॉल्स और कई बच्चों ने ये बताया कि इनको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है तो आप इसे देखने की दावत आम करें। अब बाकी कईयों ने जवाब दिए। प्रोग्राम के एंड में आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे और बाकी एक बच्चे ने हमें अरबी का एक जुमला सुनाया और उनका जवाब दुरुस्त है। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं हमारे गुलाम रसूल भाई की तरफ और देखते हैं वो हमें आज क्या सिखा रहे हैं। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजान भाई सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, ये सबको मदनी अच्छी अच्छी बातें बतलाता। गुलाम रसूल भाई, आपका ये पानी का थर्मोस कितना प्यारा है। आप ये मुझे दे देना और इसके बदले मेरा थर्मोस ले लें। देखिए ना, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ फैजान भाई, आपका पानी का थर्मोस भी बहुत अच्छा है, मगर इस तरह दूसरों से मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मगर गुलाम रसूल भाई, मुझे आपका थर्मोस अच्छा लग रहा है। फैजान भाई, किसी की चीज अच्छी लगने पर वो चीज मांगना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा अपनी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और दूसरों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फैजान भाई, हम सभी के पास कुछ न कुछ अच्छी चीजें होती हैं, मगर हमें अपनी चीजों के अलावा दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं और फिर इस तरह मांगने से हमारा दीन इस्लाम भी मना करता है। लिहाजा हमें अपनी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बांटता है ये सब। प्यारे बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि किसी से कभी कुछ ना मांगे। इसी तरह घर से बाहर अगर कभी पड़ी हुई कोई चीज कहीं से मिले तो उसे भी ना उठाएं, बल्कि अपने बड़ों को बताएं और हर हालत में सिर्फ अपनी ही चीज इस्तेमाल करने की आदत बनाएं। जी हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, ये गुलाम रसूल भाई ने हमें सिखाया। हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। जी दमदी शाह के नाज़रीन और प्यारे बच्चे, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मैं आज के सवाल का जवाब दूँ। कुरान जीत में गधे की आवाज को बुरा कहा गया है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उस्मान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मेरी पहली कॉल है। मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा। चम्मच को अरबी में मिलआका कहते हैं और किचन को अरबी में मतबख कहते हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपने अरबी के अल्फाज सुना, आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अदियान अहमद भट्टी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं सरगोदा से तला बात कर रहा हूँ। आज के आपके सवाल का जवाब, कुरान में गधे की आवाज़ को बुरा कहा गया है। जज़ाकल्लाहु खैर।
किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी आपको प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। और सबसे पहला सवाल कौन देगा जवाब? कुरान पाक में 114 सूरतें, सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान पाक में सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जी आप जवाब दें। सूरह नास। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मैंने सवाल किया था कि कुरान पाक में सबसे आखिरी सूरत कौन सी है और इन्होंने जवाब दिया सूरह नास, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगला सवाल है कि इशा की नमाज में कितने फ़र्ज होते हैं, फ़र्ज रकातें होती हैं? जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। आयान। जी आयान भाई। ईशा की नमाज में 17 रुकू होते हैं। मैंने पूछा कि कितनी रकातें फ़र्ज होती हैं? 17 रकातें फ़र्ज होती हैं। और कोई बताएगा कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? 4 2 3 4 2 3 फर्ज होती है। कितनी रकातें फ़र्ज होती हैं? 4 2 3। आप बताएं चलो। मेरा नाम अहमद है। ईशा जी, की अहमद। नमाज में 4 रकात फ़र्ज होती हैं। जी और वो इनकी तस्दीक करता है या इनकी इनका जवाब दुरुस्त है। कौन कहता है? इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है, इनका नहीं है या इनका? हमारे अहमद रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इशा की नमाज में 17 रकातें होती हैं मगर 4 फ़र्ज होती हैं, बाकी हमारी सुन्नतें भी होती हैं और वाजिब भी होती हैं, मतलब वितर भी होती हैं। जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी वो कौन सी मिठाई है जिसके नाम में एक फ्रूट का नाम भी आता है? सोचें, वो कौन सी मिठाई है कि जिसके नाम में एक फ्रूट का नाम भी आता है? वो कौन सी मिठाई है कि जिसके नाम में एक फ्रूट का नाम भी आता है? अरुण भाई पहुंचे आप? गुलाब जामुन। जी आप बताएं चलें। गुलाब जामुन। आप क्या कहते हैं? माइक में बता। गुलाब जामुन। चले गुलाब जामुन, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ सेब को उल्टा कर दें तो एक नंबर बन जाता है, वो बताएं कैसे? चले ये तो उल्टा करना था, सबको आ गया। तो आप अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम मुजम्मिल है और सेब को उल्टा करने से 0 बन जाता है। 0 बन जाता है? सेब को उल्टा करने से नहीं, सेब का जो लफ्ज़ है ना उसको उल्टा करने से। मतलब जैसे सेब है, जैसे रूम है, हमने हैं साहब नहीं, जैसे रूम का वर्ड है तो उसको उल्टा कर देंगे, क्या बनेगा? आप बताएंगे। हम पहले सवाल है ऐसे कर सकते हैं। जी से सीन ये बे यूं करके आप इनको उल्टा कर दें तो क्या बनेगा? बस। चलें आप कोशिश करें। और बे के बाद क्या आता है? चलें आप बताएं। सही है, पहले देखें सीन आता है, फिर ये आता है, आपने क्या बताया था, फिर बे आता है, तो सेब हो गया। अब इसको उल्टा कर दें, सबसे पहले फिर क्या आएगा? बे। फिर क्या आएगा? ये। फिर सीन। तो इसको पूरा मिलाए क्या बनता है? फिर एक नंबर बन जाए, एक नंबर बनता है, काउंटिंग का एक नंबर बनता है। चलें अब कोई और किसी और से पूछ लेते हैं। चले जी आप बताएं। 22। आप बताएंगे? जी आप 7। सेब लफ्ज़ को उल्टा करने से क्या बनता है ये आपने बताना है। आप वापसी कोशिश करेंगे। आप
20 बनता है जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, कोशिश कर करके ये भी कामयाब हो गए। चलें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा? बच्चों की शाम 60 जी। और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे, इसी के साथ हमारा यह सेगमेंट भी इख्तिताम तक पहुंचा जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आज आपको मदनी मसक सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। नेक्स्ट कॉल लीजिएगा। मेरा नाम ज़फ़ा अब्दुल माजिद है। मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है, कुरान मजीद में गधे की आवाज को बुरा कहा गया है। किड्स मदनी चैनल, हाँ हमारा मदनी चैनल जी। आपने सवाल का जवाब दिया, अभी मैं आपको सवाल का जवाब बता ही रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब जो मैंने सवाल पहले किया था वो दोहरा देता हूँ। किस जानवर की आवाज़ को कुरान करीम में बुरा कहा गया है? किस जानवर की आवाज़ को कुरान करीम में बुरा कहा गया है? और इसका दुरुस्त जवाब है गधे की आवाज़ को जी। तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की